آئیں اب آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کے ستائے عوام پر نیپرا نے ایک اور بجلی بم گرا دیا۔ بجلی 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نیپرا کے مطابق بجلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو، مہنگائی کے ستائے عوام پر نیپرا نے ایک اور بجلی بم گرا دیا۔ بجلی 3 روپے 28 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے، اویس کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس بتائیے گا اس حوالے سے۔ بجلی سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جو ہے وہ 3 روپے 28 پیسے مہنگی کی گئی ہے اور اضافے سے صارفین پر تقریباً 160 روپے کا بوجھ پڑے گا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کو بھجوایا گیا ہے، اور وفاقی حکومت اگر اس کی منظوری دیتی ہے تو یہ وصولیاں 6 ماہ میں ہوں گی کہ الیکٹرک کے صارفین پر بھی اگر یہ منظوری دی جاتی ہے، اگر امپلیمنٹیشن کروا دی جاتی ہے تو 14,000 روپے جو ہیں کہ الیکٹرک کے صارفین سے بھی وصول کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے اویس کیانی، بہت شکریہ آپ کا۔ نگراں وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں سندھ میں مفرور اور روپوش افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ وہ اب بچ نہیں پائیں گے، اسٹریٹ کرمنلز بھی پچھتائیں گے، مفرور اور روپوش افراد قانون کی گرفت میں آئیں گے، نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے سخت احکامات دے دیے۔ جسٹس مقبول باقر کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا 28واں اجلاس ہوا۔ صوبائی وزراء بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز، عمر سومرو، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار، چیف سیکرٹری ڈاکٹر فخر عالم اور حساس اداروں کے صوبائی سربراہان سمیت دیگر شریک ہوئے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے اجلاس کو اسٹریٹ کرائم کے حوالے سے آگاہ کیا، بتایا کہ ضلع شرقی میں اسٹریٹ کرائم کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے ضلع میں اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف ٹارگٹ آپریشن کی ہدایت کر دی۔ کچی آبادیوں میں اسٹریٹ کرمنلز کے خلاف آپریشن، اسنیپ چیکنگ اور ضمانت پر آزاد کرمنلز کی نگرانی، اور مفرور اور روپوش افراد کے خلاف آپریشن کا بھی فیصلہ کر لیا۔ ساتھ ہی پولیس کو تھانوں کی حالت بہتر کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ امن و امان سے متعلق بریفنگ میں آئی جی پولیس نے بتایا کہ رواں سال اغوا برائے تاوان کے 220 واقعات ہوئے، ابھی تک 210 بازیاب ہو چکے ہیں۔ 60 ڈاکوؤں کی لسٹیں بنائی گئی ہیں جنہیں ٹارگٹ کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے صاف کہہ دیا کہ یہ ڈاکو ہر صورت جہنم رسید ہونے چاہیے۔ ڈاکوؤں کی وجہ سے گھوٹکی کشمور پل کی تعمیر کا کام بند ہونے پر افسوس کا اظہار کیا اور رینجرز کو پل پر کام شروع کروانے کی ہدایت بھی کر دی۔ جسٹس ریٹائر مقبول باقر نے سیف سٹی منصوبے پر کمیٹی قائم کر دی، جس میں عمر سومرو سیکرٹری داخلہ اور چیئرمین PND شامل ہوں گے۔ کمیٹی ایک ہفتے میں عمل درآمد کے لیے اپنی سفارشات دے گی۔ گیس چور ہو جائیں ہوشیار، حکومت کریک ڈاؤن کرنے کے لیے تیار۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کابش میمن کی رپورٹ۔ نگرانوں کا ایک اور احسن اقدام، گیس چوروں کو سخت پیغام، کریک ڈاؤن کا کر دیا اعلان۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز کی کراچی چیمبر آمد۔ وفاقی وزیر نے صنعتکاروں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت گوہر اعجاز نے کہا کہ دنیا میں 9 سے 6 کاروبار ہوتا ہے، ہم نے 9 ستمبر تک جلدی کاروبار بند کرنے کا کہا تھا، مگر اب تاجروں کو مزید 1 ماہ کا وقت دے رہے ہیں۔ تاجروں سے ڈیٹا موصول ہونے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ پہلے ہم 9 ستمبر کو بند کرنے جا رہے تھے 6 بجے، پھر ان کو وقت دیا ہے کہ آپ جو ہے، کیونکہ کساد بازاری ہے، آپ اپنا وقت بتائیں یا اپنی پریزنٹیشنز کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے، تو ہمیں کنزیومر کا بھی، اور آپ کنزیومر کا بھی پیٹرن بتائیں، تو اب اس کا ڈیٹا اسٹڈی کر کے ہم ان کے فیصلہ وہ کریں گے جو کہ عوام کے فیور میں ہو، not in favor of businessmen, in the favor of the people of the Pakistan۔ گوہر اعجاز بولے کہ اگلے ہفتے سے گیس چوری کرنے والوں کے خلاف ایکشن شروع ہوگا، کسی قسم کی چوری نہیں ہونے دیں گے۔ ہماری SSGC اور SNGPL کے اوپر جو ہم لے رہے ہیں UFG، وہ UFG پوری دنیا کے سٹینڈرڈ سے کہیں زیادہ ہے، SSGC کی بھی SNGPL کی۔ جس طرح بجلی کی چوری کے اوپر ایکشن سٹارٹ ہوا ہے، یہ گیس کی چوری کے اوپر بھی ایکشن اگلے ہفتے سٹارٹ شروع ہونے لگا۔ یہ UFG کے اوپر نوٹس کیبنٹ میں لے دیا گیا ہے، یہ کوئی قسم کی چوری ہم نہیں ہونے دیں گے۔ نگراں وفاقی وزیر تجارت نے کہا، تھرس سے براہ راست سستی بجلی خریدنے سے ریجن کے مساوی ریٹ ہو جائے گا۔ کیمرامین احسن امین کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیوں کا کام جاری ہے۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے انتخابات کی تیاریوں سے متعلق شکوک و شبہات دور کر دیے۔ تفصیلات جانیں گے شعیب مختار کی رپورٹ میں۔
हुकूमत की इंतखाबात की तैयारी, सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इशारा। निगरां वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने आम इंतखाबात की तारीखों पर पीपल्स पार्टी और PTI के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर होने का दावा कर दिया। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी बोले, निगरां हुकूमत के पास कानून साजी का इख्तियार नहीं होता। इलेक्शन कमीशन निगरां हुकूमत की निगरानी करता है। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत होगी। इलेक्शन कमीशन पर एतराज करने वाले अदालत जा सकते हैं। अगर किसी जमात को, किसी फर्द को इलेक्शन कमीशन चाहे सूबाई हो या मरकजी हो, उसके हवाले से कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि आप उनसे जाकर मिले, मुज़ाकरात करें और बताएं पिछले दिनों सियासी तंजीमों के कायदीन से इलेक्शन कमीशन ने मुलाकातें भी की हैं। इस मौके पर गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का कहना था कि निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है। पाकिस्तान मुस्बत राह की जानिब गामजन है। मजमूई सूरत हाल मेरी सोलंकी साहब से बात हुई है, वो बड़ी मुस्बत और हौसला अफजा है। जो हमारी नीचे मुलाकात रही मेरी इनसे, उसमें इनका ये कहना है कि पाकिस्तान एक मुस्बत राह की तरफ गामजन है, जहाँ पाकिस्तान में आने वाले हालिया दिनों में इन्वेस्टमेंट भी आएगी। पाकिस्तान के जो हालात माशरती हैं उसमें बेहतरी आएगी। सिक्योरिटी के इंतज़ामात में बहुत ज़्यादा आप मुस्बत तब्दीली देखेंगे। निगरां वफाकी वजीर इत्तलात और गवर्नर सिंध ने मुल्क की तरक्की व खुशहाली के लिए जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक किया। कैमरामैन काशिफ अहमद के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात से चंद घंटे कबल ताजिर रहनुमा अब्दुल रऊफ इब्राहिम का बड़ा बयान सामने आ गया। कहते हैं कि अगर कोई ताहयात चेयरमैन बन जाएगा तो दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। हर साल इलेक्शन होने चाहिए ताकि नए लोग सामने आएं। बस हमारी बात एक है कि DGTO उसका एक कानून है कि ताहयात कहाँ कौन से कानून में है। शायद मैं कोई गलती खा रहा हूँ कि ताहयात ही हम चलाते रहेंगे तो दूसरों के नंबर तो नहीं आने ना सर। ताहयात क्या होता है, पहले तो ये कॉन्सेप्ट बताएं। और दूसरी बात ये है हमारा कहना कि साल भर में पार्टी इलेक्शन होने चाहिए, BMGN में भी होने चाहिए ना, जभी तो नए लोग आएंगे ना, नए लोग आएंगे। और दूसरी मैं आपसे बात कहूं कि देखें, जहां तक ये मामलात हैं कि किसी ने 2 साल की फीस भरी, मैंने मान लिया, अब वो तीसरे साल भूल गया या कहीं ट्रेवलिंग कर रहा है तो वो फीस नहीं भर सका, तो उसका दोबारा मेंबरशिप ली जाती है, उसको फिर मेंबरशिप के चार्जेस भरने पड़ते हैं। तो ये क्या सही है? ये DGTO का जो कानून है उसको चेंज लाए ना, ताकि वोट कास्ट हो सके। अब कोई 2 साल के बाद तीसरे साल में फारिग, वो वोट ही नहीं डाल सकता और अलग जुर्माना लग जाता है, जैसे सार्जेंट साहब जुर्माना लगाते थे गाड़ी रोक के। इस तरह ना करें, इसमें अमल दरामद करवाना है आपको। तीसरी बात, अगर हम आपसे पूछते हैं कि कोई भी बात हम आपसे कहते हैं कि SMEs की आवाज कौन बनेगा, हमें आप बता दें। बनना पड़ेगा, सबको बनना पड़ेगा। अगर आज ये आवाज दबी सिराज कासिम तेली मरहूम ने जो बेड़ा उठाया है उसका मैं इंशाल्लाह अमल दरामद कराऊंगा। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें कि अगर कोई कहता है एहतिसाब खड़ा होना चाहिए, मैं बोलता हूँ एहतिसाब सबका करो, BMGN का कर रहे हैं ना, तो इलेक्शन करवा दें। ताहयात का लेवल अब कब तक चलेगा? खुदारा इसको बंद करें ताकि नए लोग आए। एक ही फेस वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, इसके बाद तो सब बैठे हुए हैं। ना लंबी कतार ना ही घंटों इंतजार, शनाख्ती कार्ड की तजदीद कराना अब हुआ आसान। अब शनाख्ती कार्ड की तजदीद पोस्ट ऑफिस से भी कराई जा सकेगी। शहरियों को शनाख्ती कार्ड में तजदीद समेत दीगर मुतफारिक सहूलत मैसर होगी। मज़ीद इस रिपोर्ट में। लंबी कतार, घंटों का इंतजार अब हुआ खत्म। अब शनाख्ती कार्ड की तजदीद कराने के लिए नादरा दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। लंबी कतारों से बेजार अवाम के लिए सिंध हुकूमत का एहसन इकदाम। अब शनाख्ती कार्ड की तजदीद पोस्ट ऑफिस से भी कराई जा सकेगी। कराची में 10 GPOs में शनाख्ती कार्ड के हवाले से सहूलत फराहम करने के लिए काउंटर्स बना दिए गए हैं। काउंटर्स पर शनाख्ती कार्ड की तजदीद, अज़दवाजी हैसियत की तब्दीली से इस्तेफादे की सहूलत मौजूद है। गुमशुदा शनाख्ती कार्ड के मुतबादल का इजरा भी होगा। शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म होने के 1 साल तक पोस्ट ऑफिस से तजदीद कराई जा
जा सकेगी। घर के पते की तब्दीली, दस्तखत और तस्वीर में तरमीम भी कराई जा सकेगी। पोस्ट ऑफिस में ब्लड रिलेशन के बायोमेट्रिक की सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस पर FRC और बेफाम इजरा की सहूलत नहीं मिलेगी। GPOs में सहूलत के लिए नादरा सिस्टम से मुंसलिक आलात नस्ब कर दिए गए हैं। नादरा तर्जुमान के मुताबिक तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आइंदा हफ्ते से ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। सिंध की ब्यूरोक्रेसी अप्रैल 2022 से बगैर किसी गाइडलाइन के काम करने का इंकशाफ। साबिक चीफ सेक्रेटरी समेत सैयद मुमताज़ अली शाह की रिटायरमेंट के बाद सिंध की सेक्रेटरी कमेटी मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गई। आज़ाद नोड़ियों की रिपोर्ट। सिंध में 2 सालों से सेक्रेटरीज कमेटी मुकम्मल तौर पर गैर फाल, अफसरान बगैर किसी गाइडलाइन के काम करने में मसरूफ। सेक्रेटरीज कमेटी गैर फाल होने के बायस 40 से जायद सूबाई महकमों का निज़ाम डामाडोल हो गया। साबिक चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ अली शाह की रिटायरमेंट के बाद सेक्रेटरीज कमेटी मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गई। डॉक्टर सुहेल अहमद राजपूत की तैनाती के बाद एक भी सेक्रेटरीज कमेटी का इजलास ना हो सका। डॉक्टर सुहेल अहमद राजपूत की तैनाती 15 अप्रैल 2022 को हुई थी। डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत का तबादला 21 अगस्त 2023 को किया गया था। डॉक्टर मोहम्मद फ़खर आलम इरफान 21 अगस्त 2023 को तैनात हुए थे। सुहेल राजपूत के तबादले के बाद मौजूदा चीफ सेक्रेटरी ने भी सेक्रेटरीज कमेटी को फाल ना बनाया। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी ने सेक्रेटरीज का तारीफी इजलास भी तलब ना किया। अफसरान की उखाड़ पछाड़ के बावजूद सेक्रेटरीज का तारीफी इजलास ना हो सका। मुख्तलिफ महकमों की 15 अप्रैल 2022 के बाद कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई और 2022 के बाद सिंध की ब्यूरोक्रेसी बगैर डायरेक्शन के काम करने लगी है। आज़ाद नोड़ियो, कराची। जामिया कराची में असातिज़ा और वाइस चांसलर के माबैन कशीदगी की शिद्दत अख्तियार कर गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वाजिबात की अदम अदायगी पर जामिया कराची में तदरीसी अमल मुअत्तल। अंजुमन असातिज़ा की जानिब से क्लासेस का बाइकआउट कर दिया गया। तदरीसी अमल मुअत्तल होने से तालिबात भी परेशान दिखाई दी। तलबा ने बताया कि असातिज़ा के मसाइल से हमारी तालीम मुतासिर हो रही है। हम लोग फीस दे रहे हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकल रहा। आए दिन बाइकआउट, पहले भी बाइकआउट हुआ था, फिर अब दोबारा बाइकआउट हो रहा है। तो इस ऐसे नहीं होना चाहिए। टीचर्स का जो इशू है वो उन तक रहा है, बच्चों की पढ़ाई का इफेक्ट नहीं। इधर अंजुमन असातिज़ा के रहनुमा गुफरान आलम प्रोफेसर ज़िशान इकबाल फैज़ान नकवी ने बताया कि वाइस चांसलर का रवैया मुनासिब नहीं, क्लासेस का बाइकआउट मजबूरन करना पड़ा। अंजुमन असातिज़ा ने 6 साल से यूनिवर्सिटी बजट की मंजूरी न होने पर भी कमीशन के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। देखें, जो आपने जैसा जिक्र किया कि पहले इवनिंग का बाइकआउट, तो तकरीबन 8 रोज़ से जो है वो हम इवनिंग के बिल्स की वाजिबात की अदायगी के हवाले से अपना एहतजाज कर रहे थे और हमारी कोशिश थी कि जो है वो अरबाब इख्तियार इस चीज़ पर तवज्जो दें और उस पर कोई पेशरफ्त हो सके। लेकिन किसी पेशरफ्त ना होने के बायस जब हमने अपनी इजलास आमा में ये बातें सब असातिज़ा के सामने रखी तो उनमें शदीद गम और गुस्सा था और उन्होंने मुकम्मल बाइकआउट का ऐलान किया। बाइकआउट जो है वो बिल्कुल आखिरी हल होता है। पूरी कोशिश होती है कराची की सोसाइटी की कि सिलसिले मामलात जो हैं चलते रहें। इनके साथ बेतहाशा इनसे मुलाकातें की गई, इनको मसाइल पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की गई। अंजुमन असातिज़ा के रहनुमा प्रोफेसर डॉक्टर इंतखाब उल्फत ने मुआवज़ों की अदायगी के लिए एहतजाज की खबरों की तरदीद की और वाज़ेह किया कि गलत खबरें गर्दिश कर रही हैं। बाइकआउट का ताल्लुक जामिया की बका, असातिज़ा और तलबा व तालिबात की बहबूद से है। ये कहा जा रहा है आमतौर पर कि क्या सिर्फ इवनिंग के बिल्स की अदायगी जो है इस सारे सिलसिले का सबब बनी है, तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। बात दरअसल ये है कि बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जो तवज्जो तलब हैं। फॉर एग्जांपल जब आप शुरू करें तो एक पहला मामला जो है वो ये है कि जामिया के सिलेक्शन बोर्ड जो है वो एक सुस्त रवैये का शिकार है बहुत ज़माने से। साथ साथ जामिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि उसका क्या हाल है, ट्रांसपोर्ट का हाल बुरा है। दूसरी जानिब वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी कहते हैं कि वो तलबा के तालीमी नुकसान के हक में नहीं, असातिज़ा से गुजारिश है कि क्लासेस बाइकआउट ख़त्म कर दें। और ये नोटिफिकेशन कोई जामिया कराची की अपनी नोटिफिकेशन नहीं है। इस नोटिफिकेशन को जो हुकूमत पाकिस्तान है, जो टाइमिंग है आवर्स के, उसके मुताबिक है। तो ये इंश्योर करने की ज़रूरत होती है कि हमारे जितने भी स्टाफ हैं वो मौजूद हों, अपने तालिब इल्मों को तालीम का सिलसिला जारी रखें। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा के हड़ताल का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड से रिपोर्ट तलब कर ली। उन्होंने असातिज़ा के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और हिदायत की कि टीचर्स तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखें। एक्सपो सेंटर कराची पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर नुमाइश 3 रोज़ा नुमाइश में शरीक 100 ब्रांडेड कंपनीज ने खूबसूरत, जदीद और दिलकश फर्नीचर और दीगर मसनूआत पेश की। मज़ीद जानिए बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में।
हर तरफ दिलकश और खूबसूरत फर्नीचर की धूम, जदीद और आरामदाह फर्नीचर आने वालों की तवज्जो का मरकज बन गए। एक्सपो सेंटर कराची में सजा पाकिस्तान लाइफ स्टाइल फर्नीचर एक्सपो का मेला। फर्नीचर बनाने वाले टॉप 100 ब्रांड्स की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स पर मौजूद जदीद डिजाइन के हसीन, दिलकश और खूबसूरत फर्नीचर शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। साबिक सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने नुमाइश में शिरकत की और मुख्तलिफ कंपनियों के पेश करदा फर्नीचर और दीगर मसनूआत में दिलचस्पी का इजहार किया। साबिक सीनियर नायब सदर FPCCI मिर्जा इख्तियार बेग ने नुमाइश का दौरा किया, कहा फर्नीचर के जरिए मुल्क की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। कल मैं कॉमर्स मिनिस्टर साहब से मिल रहा हूँ, गौहर एजाज साहब से लंच पे गवर्नर हाउस में, और हम जिक्र करेंगे कि नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट को फ़रोग दें। नॉन ट्रेडिशनल में ये फर्नीचर एक्सपो टॉप पे आता है। 2 हॉल्स पर मुनक्दा नुमाइश में मौजूद सोफा सेट्स, बेडरूम सेट्स, ड्राइंग रूम सेट्स, ऑफिस फर्नीचर समेत मुख्तलिफ लकड़ियों से बनी अशिया और सजावटी अशिया शुरा की खुसूसी दिलचस्पी का मरकज बनी रही। तमाम कंपनियां अवेलेबल हैं एक साथ ही, उधर दूर दूर जाना पड़ता है कंपनी के पास, इधर सारी कंपनी नज़दीक होती है, ये फ़ायदा होता है। लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है, क्या क्या नए नए डिज़ाइन आ रहे हैं, क्या क्या अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छा मौका लगता है सबको कि आके अच्छी प्राइसेस अवेल कर सके, अच्छे डिज़ाइंस देख सके। मुंतज़मीन का कहना था कि नुमाइश के निकात का मकसद मुल्क की फर्नीचर इंडस्ट्री को फ़रोग देना है। और सबसे अच्छी बात यह है कराची के लोगों के लिए कि वो यहाँ पे विज़िट करें, और यहाँ पे अप टू 40% डिस्काउंट है आपको। अंडर वन रूफ इतने ज़्यादा ब्रांड्स आपको मिल रहे हैं और डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, तो कराची के लोगों को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। नुमाइश में शुरा के लिए फर्नीचर पर 40% तक की रियायत भी दी गई है, जबकि नुमाइश 24 सितंबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन इमरान अहमद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़।